A catalyst decreases the activation energy of the reaction. एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी जिसका डेल्टा एच वैल्यू दे रखा है 37 किलो कैलोरी पर मोल. 37 किलो कैलोरी पर मोल is the delta H for the reaction. A catalyst decreases the activation energy of the reaction. A catalyst decreases the activation energy of the reaction. Reaction is given along with the delta H by 2%. Full stop. By 2%. ठीक, आगे लिखो. At 27 degree centigrade. At 27 degree centigrade. 4 into 10 to the power minus 8%. 4 into 10 to the power minus 8% of the product molecules. 4 into 10 to the power minus 8% of the product molecules are able to cross over the potential energy barrier. Are able to cross over the potential energy barrier. Are able to cross over the potential energy barrier in the absence of catalyst. Full stop. 4 into 10 to the power minus 8% of product molecules are able to cross over the potential energy barrier. Are able to cross over the potential energy barrier in the absence of catalyst. Full stop. How many times the catalyst will increase the rate of forward reaction? How many times the catalyst will increase the rate of forward reaction? How many times the catalyst will increase the rate of forward reaction at 27 degrees centigrade? How many times the catalyst will increase the rate of forward reaction at 27 degrees centigrade? और एक दूसरा सवाल है, the rate constant for the forward reaction P reversible Q, इसका भी डेल्टा एच दे रखा है -478 किलो जूल पर मोल. The rate constant of the forward reaction is given by log to the base 10 Kf is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 की power 4 by T. The rate constant for the forward reaction. The rate constant for the forward reaction A P reversible Q is given by एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. And for the backward reaction is 1.2 into 10 to the power minus 14. 1.2 into 10 to the power minus 14. At 50 degrees centigrade. At 50 degrees centigrade. 1.2 into 10 to the power minus 14 at 50 degrees centigrade. Calculate the value of maximum rate constant possible. Calculate the value of maximum rate constant possible. Calculate the value of maximum rate constant possible for the backward reaction. Calculate the value of maximum rate constant possible for the backward reaction. ठीक, रिवर्सिबल रिएक्शन में एक दो बातें ध्यान में रखना कि रिवर्सिबल रिएक्शन में के फॉरवर्ड भी होता है, के बैकवर्ड भी होता है. दोनों तरफ से रिएक्शन चलता है. दोनों पे आरएनएस इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं. के फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू ए फॉरवर्ड ई टू द पावर माइनस ऑफ ई फॉरवर्ड अपॉन आर टी. And K backward will be A backward e to the power minus of E backward upon RT. ठीक है? In most cases, A forward is taken nearly equal to the A backward. In most cases, A forward is taken to be equal to A backward. और खैर, आपको पता ही है E forward minus E backward डेल्टा H के बराबर होता है. पढ़ा दिए थे ना पहले ही पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में. व्हाट इज द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन?
E forward minus E backward. What is the equilibrium constant of the reaction? K forward upon K. तो ये सब बातें रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ध्यान रखते हुए सवाल कीजिए। एक रिवर्सिबल रिएक्शन का डेल्टा H इज ऑलवेज गिवन विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस और नो? सिमिलरली एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी अगर दिया हुआ है या उसके बारे में बात हो रही है, इट विल बी विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। समझ में आ रहा? बाय डिफॉल्ट रिवर्सिबल रिएक्शन का हर डेटा जो दिया हुआ रहता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रिएक्शन। एक कैटलिस्ट एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को 2% से डिक्रीज कर रहा है। कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी? सर दोनों होता है, फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है। तो कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी? फॉरवर्ड। Let E forward represent the activation energy without catalyst. E backward represent the activation energy backward without catalyst. अगर मान लो हम इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर दिए तो हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या करेगा? पीक को नीचे लाएगा या ऊपर ले जाएगा या नीचे लाएगा। जनरली नीचे ही लाता है। हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट का ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं। पीक अगर नीचे आ गया तो ई फॉरवर्ड भी चेंज करेगा, ई बैकवर्ड भी चेंज करेगा। लेट ई फॉरवर्ड विथ कैटलिस्ट, ई बैकवर्ड विथ कैटलिस्ट। ध्यान रखना हमेशा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड विदाउट कैटलिस्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड विथ कैटलिस्ट एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच। Catalyst does not change the value of the delta H, delta G और delta E of the reaction. सिर्फ पीक को ऊपर से नीचे लाता है। नीचे लेके आ गया तो E फॉरवर्ड भी घट गया, E बैकवर्ड भी घट गया। समझ में आ रहा बात? ओके। एक कैटलिस्ट एक रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को 2% से कम कर देता है ना? तो मान लो ये है बिना कैटलिस्ट का वैल्यू, तो E फॉरवर्ड विथ कैटलिस्ट विल बी डेफिनेटली 0.98 E फॉरवर्ड। अगर उस रिएक्शन का बिना कैटलिस्ट का फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये E फॉरवर्ड है तो विथ कैटलिस्ट जरूर 0.98 EF हो गया है। तभी तो बोलेंगे 2% से घटा दिया। 2% से घटा ना, ये समझ में आ रहा? लास्ट लाइन पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स द कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। कितना गुना रेट बढ़ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट? समझ में आ रहा है? तो हमें पता है कि रेट फॉरवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन रेट फॉरवर्ड, ये पूछा जा रहा है हमसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कितना गुना बढ़ जाएगा अगर हम लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो अब ये रेशियो जो है वो KF विथ C अपॉन KF विदाउट C। रेट कंपैरिजन इज रेट कांस्टेंट कंपैरिजन। यस और नो? तो डेफिनेटली K फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू A फॉरवर्ड E टू द पावर माइनस ऑफ E फॉरवर्ड विथ कैटलिस्ट। कितना आया? 0.98 EF अपॉन RT डिवाइडेड बाई सेम A फॉरवर्ड E की पावर माइनस ऑफ EF अपॉन RT। K फॉरवर्ड इज A फॉरवर्ड E टू द पावर माइनस E फॉरवर्ड विथ कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट के केस में कितना हो गया एक्टिवेशन एनर्जी? इतना। अगर ये डिवाइड करके A फॉरवर्ड कट गया, ये कितना बचेगा? E की पावर 0.02 E फॉरवर्ड अपॉन R का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड माने 300। अगर हम लोग E फॉरवर्ड निकाल पाए तो मेरा आंसर तैयार है। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत?
How many times the rate of the forward reaction will increase in the presence of catalyst? तो RF with C divided by RF without C, ये पूछ रहा है. तो RF को हम लोग बोल दिए KF with C upon KF without C. Ka is always A e की power minus EA by RT. E forward with catalyst is this much, without catalyst was this much. है कि नहीं? बिठा दिए, ये एक्सप्रेशन आ रहा E की पावर में. E फॉरवर्ड अगर हमको पता चल गया तो मेरा आंसर तैयार है. ठीक है ना? बीच में सेंटेंस देखो क्या लिखा है. At 27 degrees centigrade, 4 into 10 to the power minus 8% of the product molecules are able to cross the potential energy barrier in the absence of catalyst. तो हम पढ़ाए थे आपको fraction of molecules which are able to cross over the potential energy barrier is e to the power minus EA by होता है ना. जब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है. कितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल तैयार हैं बैरियर को पार करने के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन की बात हो रही है. तो EA की जगह क्या आएगा? EB. तो e to the power minus of EB without catalyst by 8.314 into temperature, that will be equal to fraction. This is percentage given. 4 into 10 to the power minus 8% है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना. 4 into 10 की पावर माइनस 10. बेटा सॉल्व करके EB निकालेंगे. ये डेल्टा H जो होगा कैलोरी में है क्या? किलो कैलोरी में. तो ठीक है, ठीक है, ठीक है. इंटू 4.2 कर दो, हो गया किलो जूल. खैर एनीवे, डेल्टा H विल बी इक्वल टू E फॉरवर्ड माइनस, यहां से E बैकवर्ड बिठाए, E फॉरवर्ड निकाले, E फॉरवर्ड यहां बिठाए, आंसर तैयार. समझ में आया ये सवाल? क्लियर है? सवाल क्लियर है? के बैकवर्ड का वैल्यू दे रखा है ना, और रिएक्शन का डेल्टा H दे रखा है. ठीक. और सवाल पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पॉसिबल. क्या बताए हैं मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पॉसिबल? क्या होता है मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पॉसिबल फॉर एनी रिएक्शन? कैपिटल ए. आरएनएस इक्वेशन का दो पार्ट है, ए और ई की पावर माइनस EA बाई RT. ई की पावर माइनस EA बाई RT का यूज बता दिए तुमको. व्हाट इज द मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पॉसिबल? कैपिटल ए. बैकवर्ड डायरेक्शन का पूछ रहा है, मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन का AB का वैल्यू पूछ रहा है. समझ में आ रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या पूछ रहा है? AB का वैल्यू पूछ रहा है. तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे फॉर्म में इक्वेशन दिया जाता है, ऐसे इक्वेशन से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेते हैं. क्योंकि हमें पता है कि K फॉरवर्ड इज A फॉरवर्ड E की पावर माइनस ऑफ E फॉरवर्ड अपॉन RT. टेक ln K फॉरवर्ड इज ln AF माइनस EA E फॉरवर्ड अपॉन RT. log टू द बेस 10 है 2.303. log to the base 10 KF is equal to 2.303. log to the base 10 AF माइनस ऑफ EF अपॉन RT. तो हम लिख सकते हैं log to the base 10 KF is equal to log to the base 10 AF minus EF upon 2.303 RT. Now compare this one with this one given. We will get EF upon 2.303 R is 1.25 into 10 की power 4. We can get E forward. Clear?
डेल्टा एच इज ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड. ई फॉरवर्ड बिठा, ई बैकवर्ड निकल गया. समझ में आ रहा है? क्लियर है? एंड k बैकवर्ड इज a बैकवर्ड e की पावर माइनस ऑफ e बैकवर्ड अपॉन RT. सवाल में k बैकवर्ड दिया है, e बैकवर्ड अभी अभी निकाले हैं, टेम्परेचर दिया है, a बैकवर्ड निकालो, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पॉसिबल. क्लियर? थैंक यू ऑल.